Good morning everyone. Today we will study Physics chapter 1. Physics chapter 1 of class 10th standard. We will from today start class 10 physics. Okay. The very first chapter in the physics is electricity. Electricity. आपको ये बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge. In the previous classes also you have studied that rate of flow of current, rate of flow of charge is called electric current. How we can denote? It is denoted by symbol capital I or small I. Both symbol we can use. And in mathematical language we can write rate of flow of charge means charge. If we give the symbol capital Q to the charge and to the time denote as T, so we can say that this is the electric current, rate of flow of charge. This is the actual definition, rate of flow of charge. Okay, rate of flow of charge is called electric current. Means in any conductor, this is the conductor, and electrons, free electrons flows in this direction from A to point B. From A point to B point, if electrons flowing, then electric current produces in the direction opposite to the electrons. What is electrons? Electrons is a type of charge. Q is the charge. Q is denoted by n into E electrons. Q का फार्मूला हमारा होता है Q is equal to n into E. Number of electron present in the conductor is called electric charge. Okay, so learn this formula. Write in your copy. Q is equal to n into E. N means number, E means electron. So value of one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is the actual value of one electron. This is the quantized value of electron. What do you mean by quantized value of electron? Quantized means it may be electron, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, up to infinity electrons may be in a conductor. There may not be 1.5 electron. Means electron is a very small quantity and this one cannot be break. Okay, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉसिबल नहीं है. इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस फार्मूला आल्सो मे बी रिटन एज प्लस माइनस एनी. बिकॉज इसके बाद हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q, बोथ सिंबल वी कैन यूज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी by virtue of which it attracts or repel. कोई भी मटेरियल रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा डिपेंड करता है उसके चार्ज की प्रॉपर्टी पे कि वेदर. इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको. आप डिफिनीशन आप पहले लिख लीजिए. इट इज द इंट्रिंसिक, एक वर्ड आता है इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का ही मतलब होता है फंडामेंटल, मतलब होता है. ये तो क्लियर होगा ना. It is the intrinsic property or fundamental property of any material or matter by virtue of which
बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसका मतलब होता है जिसकी वजह से, इट अट्रैक्ट्स और रिपेल, या तो वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ खींचेगा, रिपेल मीन्स थ्रो करना, फेंक देना। जैसे कि एक चार्ज प्लस ये है, इसके पास एक प्लस चार्ज लाओगे तो क्या करेगा, कहेगा हमारे पास से दूर भागो, और माइनस चार्ज अगर आ गया तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो इसी कंटिन्यूएशन में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो यहां पर देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ओके, in class 10 we will not study in deep for charge, but we will discuss the basic concept of charge. So charge is the intrinsic property or fundamental property of any material by virtue of which it attracts or repels. Okay, now there are two types of charge, positive charge and negative charge. Okay, and due to the flow of this charge electric current produces. तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं, इसको फार्मूला लिख लीजिएगा, Q = 2 + -Ne. ओके, अब आते हैं आगे, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक करंट, एज अर्लियर आई डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इन एनी कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस, एंड दिस इज डिनोटेड बाय I = Q/G, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ I = हो जाएगा, Q का यूनिट कितना होता है, द यूनिट ऑफ Q इज कूलम एंड T इज द टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट ए न्यू नेम गिवन टू दिस, एम्पियर, मीन्स नाउ वी सी दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक current is ampere, which is denoted by A. In any device you can see 5 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 10 ampere, 25 ampere and so on. Okay, so एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि ये कोई एक वायर है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्लो हो रहा है, इसके अंदर अगर 5 एम्पियर की करंट आ रहा है तो यहां से कितनी करंट निकलेगी, हाउ मच करंट विल बी देयर एट द पॉइंट बी। ओके, तो एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इनवर्ड करंट इक्वल टू आउटवर्ड करंट होता है, ये फार्मूला है, बेसिक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर, मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए लगातार कम होता जा रहा है, बट द करंट विल नॉट रिड्यूस। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अगर कोई पूछ ले आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर है, एक जंक्शन बना दिया, यहाँ पे कह रहा है 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर और यहाँ पे 5 एम्पियर। अब पूछा जाए, अब ध्यान से देखिए फिगर, कंसंट्रेट ऑन योर फिगर, दैट टुवर्ड्स द जंक्शन ऑल द करंट्स आर टुवर्ड्स द जंक्शन बट वन करंट इज अवे जंक्शन। हमने आपको अभी बताया जितनी करंट आएंगी उतनी ही करंट जाएंगी, तो इसको सिंपली देखते, ये वाली जंक्शन की तरफ आ रही है, ये वाली भी जंक्शन की तरफ आ रही है, ये वाली भी जंक्शन की तरफ आ रही है, ये वाली जंक्शन की तरफ आ रही है, ये जंक्शन से बाहर जा रही है। तो इस आई की वैल्यू पूछा तो क्या करोगे, अगर सभी आ रही हैं 2 2 4 1 5 5 5 10 एम्पियर करंट विल बी देयर एट दिस पॉइंट। ओके, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट का हमने फार्मूला भी लिखा था, I = Q/T, और एक फार्मूला और आपको बताया था Q = N होता है, ठीक है।
तो Q इक्वल टू एनी अगर हम लिख दें अपॉन टी, तो एक फार्मूला हमको मिल गया I इक्वल टू एनी अपॉन टी. ओके, दिस इज द न्यू फार्मूला. बेसिकली वी नो I इक्वल टू Q बाई टी, बट from derivation, substituting the value of charge, we get this formula. Okay, and this will be in ampere. This is the unit. नेक्स्ट आते हैं, एक पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, आपने इसको पढ़ा भी होगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, we will discuss about the conductor, semiconductor and insulator. What are the basic differences between them? तो कंडक्टर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. जिस मटेरियल में जितने ज़्यादा प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो करंट को लेकर के फ्लो करेंगे. इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा, जब वो फ्री होगा. और सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या चार्जेस सारे बाउंडेड अगर हैं तो नो करंट प्रोड्यूसेस देयर. बट इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर और एनी मटेरियल, द करंट प्रोड्यूसेस. एंड इन दैट मटेरियल व्हेन electric current produces or electrons flows, that is known as conductors. Okay, so present free electrons, then electric current will be high. Okay, in insulator present no free electrons. ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की. इलेक्ट्रॉन सभी में होता है, फ्री नहीं होगा उसमें, मतलब कोई इतना फ्री नहीं होगा कि उसके चार्ज को ढो के लेके जाए. ठीक है, नो, इसमें क्या होगा, करंट विल बी वेरी वेरी लो. वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सो रिगार्डिंग दैट टॉपिक वी विल डिस्कस. प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एंड इन द इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन द सेमीकंडक्टर वी सी दैट is divided into two parts. सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज आप जानते होंगे, हमारे जो सोलर पैनल्स बने होते हैं वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के भी ही बने होते हैं, जिसमें एक कैपेसिटी होती है कि जब सोलर एनर्जी वो पाता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. ओके, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप में डिवाइड किया जाएगा, या तो इंसुलेटर और एक मटेरियल में देखा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक में देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो एक सेमीकंडक्टर यानी आधा, सेमी का मतलब हाफ, यानी आधा कंडक्टर की प्रॉपर्टी रखेगा, आधा इंसुलेटर की प्रॉपर्टी रखेगा. The material which have the intermediate property of insulator and conductor, that is known as semiconductor. Semiconductor में पहला केस हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दूसरा केस हो सकता है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. It depends on the temperature. When temperature increases, free electrons increases, and when temperature decreases, no free electron present, means all of the electrons bounce. ओके, इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका पोटेंशियल. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हिंदी में विद्युत विभव बोलते हैं. दैट इज नोन एज विद्युत विभव. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक यहाँ पर कोई मान लेते हैं, ये पॉइंट है, एक यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे है. ठीक है, अब इन्फिनिटी पे
अगर कोई यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज, देखिए ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव है, यूनिट का मतलब 1 होता है, कूलम का मतलब चार्ज, ठीक है। 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमारा कहाँ रखा था अभी, इन्फिनिटी पे था। अब इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपना क्या करके जाएंगे, वर्क करके जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे रखेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगेगा, एक्सटर्नल वर्क लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई चार्ज था, उसको किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे लाने में जो वर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V इक्वल टू W बाय चार्ज। दिस इज द फार्मूला एंड दिस डेफिनेशन आई विल राइट। जो हमने बोला है वही लिखना है। वर्क डन on bringing positive unit charge from infinity to a point is called electric potential. Note down in your copy. Okay, यही बोला था, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज or called electric potential. It is denoted by V, and from this formula we can write this equal to W by Q. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और पढ़ किसका रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम मान लें 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, सिंपली देख रहा है कि 2 पॉइंट के जो पोटेंशियल होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो VA पे क्या होगा, अगर इस पे A लगा दें तो चार्ज तो वही आया था दोनों पे, तो VA लगा दें तो ये इसको लिखा जा सकता है, इसको डेल्टा V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए VA माइनस VB डिफरेंस है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WA बाई Q माइनस WB बाई Q। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, आएगा WA बाई माइनस WB। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। In the electricity, actually we discuss about the potential difference, not potential, but we will see that the definition of potential is this and the potential difference is this. अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर 5 कूलम चार्ज रखे हुए हैं, देयर आर 5 कूलम चार्ज। आप बताइए कि यहाँ से यहाँ लाने में वर्क लग रहा है 10 जूल। क्या लग रहा है, 10 जूल। यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क 10 जूल लग रहा है, और यहाँ पर पोटेंशियल इसका V पॉइंट B 20 था, तो पोटेंशियल एट A कितना होगा। देखो ध्यान से देखो, 2 पॉइंट है A एंड B, यहाँ पर 5 कूलम चार्ज रखा हुआ था, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में 10 जूल की एनर्जी वेस्ट हुई, यानी 10 जूल वर्क डन हुआ, और V एट पॉइंट B इज 20। तो फार्मूला इज VB माइनस VA इक्वल टू Q W अपॉन Q, क्योंकि WA माइनस WB का मतलब कुछ नहीं होगा, W ही होगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूले में रख दो, VB कितना है 20 माइनस VA इक्वल टू W कितना है, W मीन्स 10 जूल अपॉन 5 टू 10, तो कितना हो जाएगा, VA उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 2 इक्वल टू VA क्या हो जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। कितना हो गया 18 वोल्ट, दिस इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट ये भी कह सकता है, इसमें क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने बताया था, ये 1 अभी बता चुके हैं। अब मान लीजिए कि वर्क पूछ ले, यहाँ पर ये दिया है, अब कह दे कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका V डेल्टा V जो है
दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 वोल्ट दिया मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन हमने बदल दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो पूछ लेगा कि W क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन। तो डेल्टा V वाला फार्मूला लगाओ कि Q बाई W बाई Q, और फार्मूले में डेल्टा V 20 है, W नहीं पता, Q 5 है, कितना हुआ 100 जूल, ठीक है। कोई भी चीज़ इसमें से पूछ सकता है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर योर नेक्स्ट वीडियो।